Cheerful morning, children. So we are going to start the next chapter in our English course book. We had done second chapter, Jack and the Beanstalk, and today we are going to learn a short poem. Okay, children, what is this? This is a short poem. The title of our poem is The City Train. What it is? The City Train. So title सुनते सुनते आपको कुछ समझ में आया होगा, isn't it? So we are going to talk about a train, है ना? We are going to just talk about a train. You all of you know what a train is, and the train which we are talking about is the city train. So children, let me start reading now. Okay, I'm going to read the complete poem, so kindly listen to me carefully. Let us read this. We're rushing through the station, wave tickets for the train. We are visiting the city, then we are home again. The train is at the platform and it's ready to go. We must hurry, hurry, hurry. I can hear the whistle blow. The red and silver engine is noisy, big and strong, and faster, faster, faster it's pulling us along. Now trees and fields are flying by the train. We are visiting the city, then we are coming home again. And नीचे एक word लिखा हुआ है children, just listen to that word too. That is anonymous, ANONYMOUS. एक्चुअली कोई पोम या स्टोरी के बाद नीचे जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है बेटा? इट विल बी द नेम ऑफ अ राइटर. मोस्टली राइटर मतलब जिसने ये लिखा है उनकी नेम लिखा हुआ होता है. सो इज़ एनोनिमस अ नेम हियर? ये पोएट का नेम है क्या? नो. एनोनिमस मीन्स कभी आप ऐसा मत सोचना नीचे जो लिखा है वो नेम होता है. एंड एनोनिमस इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन. नो, द एनोनिमस मीन्स जिसका नाम का पता नहीं है ना? कुछ शॉर्ट पोम्स एक्सट्रैक्ट्स वगैरह किसी से लिया हुआ हो एंड जिसका नाम हमें पता नहीं होता है तो उसको हम लिख देते हैं एनोनिमस. इज इट ओके स्टूडेंट्स? सो एनोनिमस का मीनिंग क्या होता है? नाम का पता नहीं होना. ओके, नाउ रीडिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा? फर्स्ट पैराग्राफ को अगेन रीड करूँगी मैम एंड आपको समझाऊँगी. वेयर मीन्स क्या होता है? दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी आर रशिंग थ्रू द स्टेशन. यस, वी मीन्स हियर वी कैन इमेजिन ए फैमिली. एक फैमिली देखो हियर इन द पिक्चर वी कैन ईजिली सी द फैमिली, द सीन ऑफ ए railway station. Isn't it children? This is the scene of a railway station and a family is rushing to catch the train. We can see here mother, father and their children, and train is arrived at the station. So we are rushing through the station means we are rushing का मतलब होता है भागना. हम स्टेशन में भाग रहे थे. Why? We have tickets for the train. We have मतलब हमारे पास है. क्या है? What we have in order to travel in a train, what anyone needs, every person needs a ticket to travel in a train. If you want to travel somewhere in the train, what you need a ticket. So in the same way the family has tickets with them. So what they are saying, we have tickets for the train. हमको ट्रेन में जाने के लिए हमारे पास टिकट भी है. दैट्स वाई हम भागते हुए जा रहे हैं स्टेशन की तरफ. वी आर विजिटिंग द सिटी. Again, we are means this is the short form of we are visiting the city. We are just going to visit the city. What we always used to children, summer vacation, winter vacation, whenever we have holidays or if you want to go and attend any occasion outside our city, what we used to do, हम दूसरे सिटी जाने के लिए दूर हो तो ट्रेन में जाते हैं. So in the same way this family too is going to visit the city. They are going to visit some other city. कोई सिटी विजिट करने मीन्स घूमने जा रहे हैं. Then we are home again. हम घूमने जाते हैं तो हम वापस अपने घर आएंगे. The same thing है ना? We are visiting the city. हम सिटी घूमने जा रहे. Then we are home again. वापस हम घर आएंगे. Second paragraph.
सेकंड स्टैंजा नॉट पैराग्राफ चिल्ड्रन, ये 4 लाइन्स की पोम में जो 4 लाइन्स होते हैं ना उनको एक स्टैंजा बोलते हैं. ओके, नाउ सेकंड वन. The train is at the platform and it's ready to go. Where is the train? The train is at the platform. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है. ट्रेन कहाँ खड़ी है? प्लेटफॉर्म पे खड़ी है. What do you mean by platform children? प्लेटफॉर्म क्या होता है? आप सबने रेलवे स्टेशन विजिट किया. यू नो व्हाट इज़ अ ट्रेन एंड व्हाट प्लेटफॉर्म मीन्स. प्लेटफॉर्म जो जहाँ रेलवे ट्रैक होता है अलग साइड में एक रेजर सरफेस जो होता है ना, जिस पे हम पैसेंजर्स ऑल द पैसेंजर्स विल गेट ऑन एंड ऑफ फ्रॉम द ट्रेन्स एट द स्टेशन. रेलवे स्टेशन में गेट ऑन होने के लिए, गेट ऑफ होने के लिए जो रेजर एरिया ऑफ लैंड सरफेस जो होता है उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उधर की जो जगह है. ओके, सो द ट्रेन इज़ एट द प्लेटफॉर्म एंड इट्स रेडी टू गो. ऑलरेडी द ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में आ चुकी है एंड इट्स रेडी टू गो. वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है. एंड इट्स रेडी टू गो, वो बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो गई है. नेक्स्ट, वी मस्ट हरी हरी हरी. आई कैन हियर द विसल ब्लो. यस वी मस्ट हरी. हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी करना है हमको, बहुत फास्टली जाना है हमें, है ना. वी मस्ट हरी मीन्स कभी जल्दी में जो काम करते हैं ना उसको हम बोलते हैं हरी. वी मस्ट हरी हरी हरी. यस, फास्टली हमको जाना है. आई कैन हियर द विसल ब्लो, क्योंकि कभी भी वेन एवर अ ट्रेन इज़ जस्ट गोइंग टू स्टार्ट वी कैन हियर अ विसल. ट्रेन से विसल ब्लो करते हुए हम वी कैन लिसन द ब्लोइंग साउंड ऑफ द विसल. So it means that the train is ready to start and we are ready to leave the platform. whistle से आपको समझ में आता है, whistle की आवाज़ जैसा सुना आपको पता चलता है कि yes the train is just going to move. So the train is at the platform and it's ready to go. So बिल्कुल रेडी तैयार है. We must hurry hurry hurry. हमको जल्दी से भागना पड़ेगा. Why? Because I can hear the whistle blow. फदर बोल रहे होंगे yes मुझे whistle की आवाज़ सुनाई दे रही है. So we should be in hurry. हमको बहुत जल्दी भागना पड़ेगा इधर से. The red and silver engine is noisy, big and strong. See here in the picture we can see the कलर ऑफ द ट्रेन, है ना. ट्रेन की जो कलर है रेड कलर और इंजन की कलर है सिल्वर. द रेड एंड द सिल्वर इंजन, रेड और सिल्वर कलर की जो इंजन है इट्स इज़ नॉइजी. वो से इंजन से देखो कैसी आवाज़ आती है, बहुत नॉइज़ी आवाज़ है. ऐसा नहीं कोई आपको प्लेजेंट साउंड आएगा उससे, तो नॉइज़ी ही आवाज़ ही आता है. सो एंड इट इज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत बड़ा भी है एंड इवन वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है. नॉइज़ी मीन्स जो शोर करने वाला, है ना. and faster it's pulling us along and faster means बहुत जल्दी चलने वाला. ट्रेन तो बहुत जल्दी भी जाएगी and it is very big and even बहुत strong, बहुत मजबूत भी है. So and faster it's pulling us along means they have been get into the train, मतलब वो ट्रेन में get on कर लिए थे. and after that what happened and faster वो ना बहुत जल्दी से it's pulling us along. pulling PULLING, पुलिंग मीन्स वो खींचना. वो ट्रेन क्या अभी आपको पता है इंजन जो है ट्रेन की, जो इंजन के साथ बाकी सब कंपार्टमेंट्स अटैच्ड हुआ रहता है. सो द इंजन खींचता जाएगी, आगे जाएगी तो अपनी कंपार्टमेंट्स में साथ ट्रेन भी मूव होता रहेगा. जैसा इन्होंने ट्रेन पे जैसा ही वो ट्रेन पे गए थे तो एंड फास्टर इट्स पुलिंग अस अलोंग, वो हमको खींच रहा है. मतलब द ट्रेन इज़ पुलिंग देम, हमें अपने साथ खींचेगा क्योंकि इंजन जो है वो अपने साथ खींचेगा अपन को. द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर, इतना फास्टली खींच रही है. नाउ द फोर्थ वन, नाउ ट्रीज एंड फील्ड्स आर फ्लाइंग बाय. जैसा आप ट्रेन में बैठते हो, यू कुड हैव ऑब्जर्व दिस चिल्ड्रन व्हेन एवर यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन. व्हाट हैपन्स, हमें लगता है कि बाहर के सब भी अपने साथ मूव हो रहे, बट इज़ दैट हैपन्स? नो, वो ऐसा नहीं होता है. वो जहाँ ट्री है वो उधर ही रहेगा, जहाँ कोई बिल्डिंग है वो तो रहेगा, फिर भी अपन को लगता है वो भी अपने साथ मूव होते हुए आ रहे. इफ़ यू कम अक्रॉस ट्रीज और फील्ड्स, कहीं पे फील्ड्स ट्रीज एम्प्टी बैरन लैंड में कोई ट्रीज वगैरह हो, वो सब जब आप देखते हो तो आपको लगता है आपके साथ वो भी आपके साथ बहुत जल्दी भागते हुए आ रहे हैं आपके साथ. बट दैट ट्रेन मूव हो रही है, आपको बाहर की सीनरी ऐसा दिखती है.
The same thing the poet wants to express here. Now trees and fields are flying by. Either trees or fields be flying by. Flying means moving past the window quickly. मतलब ट्रेन की विंडो की तरफ से आप देखो तो बाहर जो भी ट्रीज हो, बिल्डिंग्स हो, फील्ड्स हो, वो सब आपके साथ साथ क्विकली आते हुए दिखता है. सो नाउ ट्रीज एंड फील्ड्स आर फ्लाइंग बाय. ट्रीज और फील्ड्स आपके साथ मूविंग पास्ट द विंडो क्विकली आते हुए दिख रही है. फ्लाइंग बाय द ट्रेन मतलब ट्रेन के साथ वो भी उड़ रहे जैसा दिख रही है. कैसा दिख रही है बेटा? उड़ रहे जैसा दिख रहे हैं. मतलब पेड़, खेत, ये सब क्या आपको कैसा लगता है? चलते हुए नज़र आ रही है, चलते हुए नज़र आ रहे हैं. सो वेयर द फैमिली इज गोइंग नाउ? We are visiting the city. We are just going to want to visit the city. Then we are coming home again. Again मतलब visit करने के बाद we are coming home again. हम वापस घर आ जाएंगे. वो मतलब अभी सिटी विजिट करने जा रहे हैं एंड आफ्टर दैट, आफ्टर विजिटिंग द सिटी वी विल कम बैक अगेन. हम वापस अपना घर आ जाएंगे. वी आर कमिंग होम. होम मीन्स अपना जो लिविंग प्लेस है. अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू कम बैक टू आवर होम. हम वापस घर आएंगे. सो वॉट यू केम टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? इससे आपको क्या समझ में आया? यस, दिस इज़ अ स्मॉल शॉर्ट पोम एंड वी डोंट नो द राइटर का नाम का पता नहीं है जिसको, दैट्स वे वी हैव मेंशनड इट एज एनोनिमस. सो अ फैमिली इज जस्ट गोइंग टू विजिट city. They want to visit a city and when they arrived at the station, जब भी वो स्टेशन में आए थे, the train is already there. ट्रेन ऑलरेडी उधर है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है एंड दैट्स वे इवन दे हर्ड द विसल के साउंड भी सुनाई दिया. तो व्हाट दे हैड डन, दे हरी में मतलब बहुत जल्दी भागते हुए दे जस्ट एंटर्ड द ट्रेन में एंटर कर लिया. आफ्टर दैट कैसा है ट्रेन की इंजन? रेड एंड सिल्वर कलर की. एंड हाउ व्हाट टाइप ऑफ नॉइज इट इज़ मेकिंग? नॉइजी, बहुत नॉइजी, शोर मचाने वाला जैसा है. एंड इट इज़ वेरी बिग एंड इवन सो स्ट्रॉन्ग. यस, इट विल बी स्ट्रॉन्ग. एंड कैसा जा रही है ट्रेन? जैसा हम ट्रेन पे चढ़ गए थे, आफ्टर दैट इट्स फास्टर, बहुत फास्टली जल्दी चलने वाला और हमें अपने साथ खींच रहा है. नेक्स्ट, ट्रीज एंड फील्ड्स. जैसा ट्रेन पे बैठे हैं फैमिली को ऐसा लग रही है सारे ट्रीज और फील्ड्स भी उनके साथ बहुत विंडो के साथ उनके साथ क्विकली मूव हो रहे हैं. एंड व्हाट वेयर दे आर गोइंग? दे वर गोइंग टू विजिट द सिटी एंड दे विल कम बैक होम अगेन. सो ए शॉर्ट पोएम है चिल्ड्रन, अच्छा से रीड करिए. एंड इसमें कोई इतना टिपिकल वर्ड्स तो है ही नहीं. सो जस्ट गो थ्रू द पोएम, गो थ्रू दिस पोएम एंड रीड इट thoroughly and try to learn this poem. Okay children, thank you.